Hello everyone and Assalamu alaikum. I am Dr. Shazaf Masood Sidhu, as you all know. Thank you for staying up and मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया. So as you all know that in the last video we have talked about the do's and the don'ts of first trimester. So today we'll talk about what are the do's and the don'ts of second trimester. सबसे पहले तो about this trimester, I would tell you that it's the 4, 5, and the 6th month of the pregnancy, and this is again a very very precious time of your life जब आप अपने बेबी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं बिकॉज in around 18 to 20 weeks of the pregnancy you start feeling quickening. Quickening is when the baby kicks you and then a mother feels contraction on the belly. This is also the time जब आपका baby bump around by the end of the 4th month and the beginning of 5th month आपका baby bump prominent होने लगता है. You start having that natural pregnancy glow and then things around you start getting a lot more better and positive because you and your baby are kind of connected. अब आपका जो एक interaction होता है obviously आपने first 3 months एक दूसरे के साथ एक bond बनाया होता है और वो bond अब sustain होते जाता है and then gradually एक improvement होती है mother और baby के बीच में एक understanding develop हो जाती है. So obviously you start getting better, you overcome and bypass the phase of nausea and vomiting almost. Some people however do experience nausea and vomiting in the second trimester as well, but that's not the case always. तो ये कम ही होता है. यूजुअली nausea vomiting लोगों को फर्स्ट trimester में ज़्यादा रहता है as far as the stats are concerned. So when we talk about the second trimester, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने पहले भी कहा दैट द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज़ देयर. तो आपने ऑल टाइम्स अपने जनरल फिजिशियन के साथ लूप में रहना है सो दैट यू नो दैट कि आपको पता रहे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपके वाइटल्स डिस्टर्ब ना हो, आपके ब्लड शुगर्स एब्रप्टली राइज ना हो. तो ये आपका जो बेसिक मेडिकेशन लेवल है वो एट ऑल टाइम्स स्टेबल रहे. तो जो आपकी जनरल हेल्थ है वो विद योर गायनोकोलॉजिकल स्टेटस शुड रिमेन इन टच. तो आपने अपने जीपी से हमेशा टच में रहना है. एंड इफ़ यू हैव एन अंडरलाइंग कोमॉर्बिड दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जनरल फिजिशियन के साथ लूप में रहें विद रिगार्ड टू योर एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड योर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड योर इंसुलिन्स. एवरीथिंग नीड्स टू बी काउंटर चेक्ड. अच्छा, ये तो होगी एक बात. सेकेंड, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था दैट the scans needs to be timely done. तो anomaly scan around 18 to 20 weeks is the anomaly scan और वो आपने टाइमली कराया. anomaly scan is the scan जब आपकी बेबी का एक अल्ट्रासाउंड होता है for your baby's basic health and you get to know that your baby is doing fine or not. Okay, I would like to mention one thing here that a lot of people, not all of them, but some of them are very much concerned about the gender of the baby. Ideally, I being a doctor, I have never bothered about the gender of the baby because it's such a blessing to have a baby itself, be it a girl or a boy. And but yes, कुछ लोग जो curious होते हैं, जो worrisome होते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ बता दूँ that ideally in somebody who's an expert in the sonology, who's an expert doing ultrasound might tell you a gender around 20 weeks, but ideally here in our setup जो आपकी मशीनरी होती है उस पर भी डिपेंड करता है. ऑब्वियसली जो करने वाला आपका रेडियोलॉजिस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है. एंड इट्स समवेयर अराउंड लेट इन द 5 months. तो आपको बता देते हैं बट इट्स बेटर नॉट टू आस्क अबाउट इट. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए व्हेन इज़ द टाइम व्हेन यू गेट टू नो. बट एनॉर्मली स्कैन में अगर आपको डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया होता है तो वो खुद बता देते हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर सप्लीमेंट्स एट ऑल टाइम्स आपने अपने सप्लीमेंट्स लिए हुए हों. योर आयरन सप्लीमेंट्स, योर फॉलिक एसिड्स, योर कैल्शियम एंड वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स. ओके, एंड देन आपको लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने कहा था कि कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी, अपने पेस पे रह के आपने चलना है. डू नॉट डू
much with your body. Don't take experiments, even if कि वो diet related हो, yoga related हो या वो exercise related हो. Please do not do any experiments with your body, because it's not about your own life, it's about your baby's life as well. Secondly, again, the intake of caffeines and laxatives, taper that. वो आप उतनी ज़्यादा ना लें जितनी आप नॉन प्रेग्नेंट रूटीन बॉडी में ले रहे हैं, उस तरह नहीं लें. ठीक है, बिकॉज लेग्जेटिव एक्ट्स एज एन अबॉर्टिफिशिएंट टू, सो प्लीज़ अवॉइड दैट. अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज़ ट्रैवलिंग. तो अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ऑन द लूप with your general physician, and your GP knows about your current status, your gynecologist knows about your current status, your baby's health is fine, your ultrasound is doing well. Only then you can travel, because the risk of premature deliveries is there in the late time of second trimester, like 6 month and on. तो यानी कि लेट सेकेंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरीज होता है. तो वो चीज़ें आपने ज़रूर रखनी ज़हन में. देन यू शुड ऑल्सो नो कि जब हमने कहा था अपनी फर्स्ट वीडियो में दैट द हेल्दी वेट गेन इज़ 11 kgs, तो आपने अपने वेट पे भी ट्रैक रखना है. ये ना हो कि आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर हो गए हैं एंड यू हैव बेयरली गेन्ड 2 kgs एंड 3 kgs, विच नॉर्मली वी हैव सीन इन अ डेली लाइफ. कैसा होता है कि औरतें आती हैं, कहती हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नॉजिया वॉमिटिंग कितना होता है, तो इसलिए भी नहीं बढ़ रहा होता. बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू शुड ऑल्सो वरी अबाउट योर वेट. एंड व्हेन वी से योर वेट, टू इंक्रीज वेट, इट्स ऑलवेज कंसिडर कि आपने हेल्दी ही डाइट ली हो. ये नहीं कि आपने कार्ब्स का इंटेक बढ़ा दिया या कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग गए या जंक फूड पे चले गए, जिसकी वजह से आपका वेट तो बढ़ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ हेल्दी वेट गेन. सो अगेन, अच्छा, इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द डूज हेयर एज वेल इज़ कि जब आप मिनिमम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में केयर करनी है. जैसे कि मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ सीट बेल्ट वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन द कार, एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और व्हेन यू आर सिटिंग, मेक श्योर कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने लेग्स को लटका के नहीं रखा हुआ है, हैंग अराउंड नहीं किया हुआ है. तो ये कुछ पिटी पिटी डिटेल्स हैं. एंड मेक श्योर कि जब आपके लेग्स पे एडिमा डेवलप होने लग जाए तो आपने वो फ़ौरन पिकअप करना है. एडिमा डेवलप होने का मतलब यही है दैट योर प्रेशर्स आर ऑन द हायर साइड. अच्छा, देन व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने टमी पे, अपनी बेली पे ना सो रहे हों, लेफ्ट लेटरल होके सो रहे हों. देयर शुड बी अ पिलो अराउंड यू, बिलो यू एंड अंडरनीथ योर नेक. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली जब हम डोंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो डोंट्स में बहुत सारी चीज़ें. एक तो ये हो गया कि आप अपनी बेली पे ना सो रहे हों वेल यू आर ट्रैवलिंग. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप कर रहे हैं ट्रैवल, तो इंश्योर करें कि अपनी चीज़ों को लेके चलें, मेडिकल हेल्थ आपके साथ साथ चल रही हो. अपने अपनी जीपी को लूप में लेना है. एंड ऑल्सो टॉप मोस्ट थिंग हेयर इज, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिनके बारे में आप काम नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज़ यू आर वेयरिंग योर ओल्ड क्लोथ्स. तो जब आप अपने पुराने क्लोथ्स पहन रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपका बॉडी स्टेटस, बॉडी फिगर अब वो नहीं होता. तो जब आप अपने पुराने क्लोथ्स पहन रहे होते हैं, नॉट दैट कि अपेरेंटली आप उसमें अच्छे नहीं लग रहे होते, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर बेबीज़ हेल्थ. जितने आप फिटेड कपड़े पहनेंगे या जितने आप रेशमी कपड़े पहनेंगे, उससे ज़्यादा जितने आप रेशमी और टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शंस का रिस्क होता है. और जितने ज़्यादा आप टाइट क्लोथ्स पहन रहे होंगे, उतना ज़्यादा स्वेट एक्यूमुलेशन होगा. इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबीज़ हेल्थ एज वेल. सो जब आप प्रेगनेंसी में एक दफ़ा एंटर हो ही गए हैं, जेस्टेशन पीरियड आपका चल ही रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी मच कंसर्न अबाउट योर बेबीज़ हेल्थ एट ऑल टाइम्स. तो आपको पता होना चाहिए कि आप लूज़, बैगी, सॉफ्ट क्लोथ्स पहने, जिससे आपका बेबी भी हेल्दी रहे. एंड अगेन, स्टे पॉजिटिव, eat healthy, drink a lot of water, avoid dehydration. If I tell you about my own experience, मुझे भी बहुत डिहाइड्रेशन हुई थी एंड उसकी वजह से मैंने लेरेंजाइटिस डेवलप कर लिया. एंड इट टुक मी सम वाइल टू गेट बैक टू माई नॉर्मल पेस. एंड समटाइम्स आई स्टिल कोप अप विद डिहाइड्रेशन. तो हो जाता है, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर वर्क लाइफ इतना होता है, स्ट्रेस इतना होता है, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो. तो थोड़ा सा आपने इस पे काम करना है. पीपल हु आर वर्कहॉलिक,
जो कि घर पे नहीं, बाहर काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर और काम करें, बिकॉज समर्स हैं, यू स्वेट लॉट, यू वर्क अलॉट, तो ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और जो हाउस वाइफ्स हैं, घर पे काम कर रही हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तो सेम इज़ द रूल फॉर देम। एंड ऑल्सो डोंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है दैट डू नॉट मिस योर स्कैन्स। ऑल्सो आई हैव मैंशन दिस अर्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डोंट्स में होती है, वो ये होती है दैट डू नॉट टेक एनी इमोशनल स्ट्रेस। जो वीडियो आपके इर्द गिर्द कोई और भी देख रहा है, जो ऑब्वियसली आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, स्पेशली इन माई वीडियो, दैट जब आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई बात ब्रेक कर रहे हो, कोई न्यूज़ गॉड फॉरबिड ब्रेक कर रहे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड that you have to very cautiously dealt with the pregnant women, because it's all about hormonal imbalances. The corticosteroids plays a role there. तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स इतना शफल अप कर रहे होते हैं कि आप कोई भी स्ट्रेस इतनी जल्दी लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे एकदम रिएक्शन होती है. your body gets into a state where you come down to a state of emotional breakdown. आप nervous breakdown में भी जा सकते हैं. तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हों, आपको cautiously ये बात बताएं that you just have to stay happy. God forbid if something happens in the family or anything, कुछ भी जो आपको बॉदर कर सकता है, जो उनको लगता है, तो आपको आराम से तरीके से न्यूज़ ब्रेक करें, बताएं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड avoid added salt in the diet and eat fruits, green leafy vegetables, healthy like I said. लेकिन उसमें भी याद रखें कि excess of everything is bad. अगर आप बनाना शेक्स या मैंगो शेक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं दिन में, तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके शुगर्स बढ़ाएगा. तो दैट्स अबाउट इट. दैट्स अबाउट द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द नेक्स्ट 3 months जो हमने अभी कवर किए हैं, 4, 5 and the 6 months. फॉर द थर्ड ट्राइमेस्टर जो लास्ट 3 months है, that will cover in the next video shortly. And again, if you have any question or anything you wanted to know with regard to your pregnancy, if you want to show your scans to me, if you want to get your lab test done, अगर आपने कोई result show कराने हैं, or please make sure that your baseline labs are done at all levels, and your flu vaccinations and everything, the current vaccinations are up to date. And जो टेटनस वैक्सीन्स है वो हम नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में कवर करेंगे, बिकॉज दैट कम्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. एंड आई होप इट्स दैट्स अबाउट इट. और आई होप कि मेरी वीडियो से किसी को कोई ना कोई फ़ायदा हुआ हो. एंड स्टे एक्टिव, but make sure that you do not take a lot of work from your body. Stay connected with your baby. Enjoy your pregnancy. It's such a beautiful phase. And don't forget to take your baby bumps picture so that you have a record and a memory for later, that you can show it to your baby afterwards. And trust me, it's such a beautiful experience. So lastly, thank you for watching, and please make sure that you're subscribing, and don't forget to like, comment and share. Thank you so much.